Hello everyone, I hope you're all doing well. Myself Manjula. So continue our discussion on India's external relations or India's foreign policy chapter from class 12 political science. This is part 2, and in this second part we are going to actually discuss about India China 1962 war and its consequences, or you can say its impact, right? So this will be our main focus of discussion in this part. Now if you want to get the PDF of every video I upload, kindly search Manjula Ma'am official in Telegram channel to get the PDFs. Let's start. Now, see, in previous part we discussed about the emergence of India's foreign policy, and then we discussed about various principle on the basis of which our Indian foreign policy actually works. That all be done in detail about Panchsheel, about non-alignment, everything we discussed in detail. Now, from here we have to start. That is peace and conflict with China. See, if we see the history, India began its relationship with China with very friendly note. Okay, अगर हम कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन था स्टार्टिंग टाइम पे, पाकिस्तान के साथ 1947 में एक काइंड ऑफ एक स्मॉल कन्फ्लिक्ट हो गया था, वॉर टाइप, एंड दैट वाज नॉट फुल स्केल्ड वॉर. ठीक है, but the relation was not positive, starting with Pakistan. But if we do the comparison with China, तो चाइना के साथ जो हमारा रिलेशन जो था दैट स्टार्टेड एट अ वेरी गुड नोट. बहुत ही फ्रेंडली नोट में हमने स्टार्ट किया था रिलेशन. ओके, चाइना में चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था, एंड आफ्टर दैट 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केम इनटू एग्जिस्टेंस. बेसिकली कम्युनिस्ट चाइना एग्जिस्टेंस में आया था. ओके, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था. तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज दिस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कि हाँ ठीक है, चाइना जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ये कंट्री है. इस तरीके से इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया. ओके, एंड एट दैट टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, व्हाट ही सेड, he was actually said that it is exceedingly unlikely that India will face an attack from China. So at that time, the Prime Minister of India, the first Prime Minister of India, Mr. Jawaharlal Nehru, he was so confident कि हमें कभी भी चाइना से थ्रेट नहीं हो सकता, चाइना कभी इंडिया को अटैक नहीं कर सकता. ही was so confident on that. ओके, एंड एट दैट टाइम जो हमारे लीडर जो थे उनके माइंड में यही था दैट अगर हमारे पास लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी में अगर कहीं किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, दैट विल बी फ्रॉम पाकिस्तान, नॉट फ्रॉम चाइना. ओके, एंड जवाहरलाल नेहरू, वी के मेनन एट दैट टाइम, राइट, डिफेंस मिनिस्टर वी के मेनन एट दैट टाइम, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दैट चाइना कैन नेवर अटैक इंडिया. फाइन. एंड हमारे जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, दैट वॉज for initial that time period that was guarded by this paramilitary force, not by army. Okay, तो आर्मी देखो, मिलिट्री में बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं. तो पैरामिलिट्री फोर्स ने इंडिया और चाइना के बॉर्डर को गार्ड किया था, नॉट बाय आर्मी एट द इनिशियल स्टेज. लेटर ऑन ऑफ कोर्स आर्मी गार्ड करती है आज के टाइम पे. फाइन. और इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, दैट इज दिस वन, पंचशील एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस. जवाहरलाल नेहरू और उस टाइम पे चाइना के जो प्रीमियर जो थे जू एनलाई, बोथ साइन दिस पंचशील एग्रीमेंट ऑन 29th April 1954. I will discuss more in detail about this Panchsheel agreement once again. I discussed that in first part, but in this part also we will discuss about it. Now listen. Now the point here is चाइना का जो इन्वेजन है 1962 में, काइंड ऑफ चाइना और इंडिया का चाइना और इंडिया का वॉर क्यों हुआ था, that's the main point to be noted. Okay, now two developments, दो ऐसे developments that which actually strained the relationship between India and China. Now these are those two developments you can see here. The first thing is China annexed Tibet in 1950, and second, boundary dispute between India and China. Okay, so both the things we will discuss in detail. First, we will do the discussion on this one, that is Chinese annexation of Tibet in 1950. For that, first we have to, understand a basic background about Tibet. First, see the location of Tibet region. This is the location of Tibet. Okay, this is actually, it's the largest plateau on the earth. This is located in Central Asia. Okay, Central Asia का location है ये. And this you can see here, India और China के बीच में एक region है. Fine. And this act as a buffered zone.
Okay, historically ये रहा कि that there was always a it was one of the major issue of conflict between India and China historically. अब हुआ क्या था 1950 में चाइना एक्चुअली कंट्रोल्ड दिस तिब्बतन रीजन एंड इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ तिब्बत, तिब्बत एक ऐसा रीजन रहा है जो पहले लाइक इंडिपेंडेंट भी रहा है एंड इन बिटवीन चाइना ने कंट्रोल भी किया था. सो वो दोनों चीज़ें इट्स अ मिक्स ऑफ दैट, समटाइम्स इंडिपेंडेंट, समटाइम्स एक्टेड अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना. फाइन. एंड यहाँ पर जब 1950 में चाइना ने कंट्रोल किया था तिब्बत को, द पीपल ऑफ द तिब्बतन दे एक्चुअली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस चाइनाज मूव एंड दे डिमांडेड दैट दे शुड मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस. और इंडिया ने स्ट्रांगली चाइना को अपोज किया था और चाइना को कहा था कि दैट चाइना शुड रिकॉग्नाइज तिब्बत्स क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस. ओके, सो इनिशियली इंडिया ने अपोज किया था चाइनाज के मूव को. फाइन. बट हुआ क्या 1954 में India and China, they both signed the Panchshil Agreement. And what is that Panchshil Agreement? Basically एक agreement sign किया था. Agreement का नाम ये था कि Agreement on Trade and Intercourse करके था. Okay, and that was actually signed for this Tibetan region of China एंड इंडिया के बीच में. ओके, तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना जैसे ट्रेड वगैरह करने के लिए, तो उस रीजन और इंडिया के बीच में वो एक एग्रीमेंट साइन किया था 1954 में, जिसका बेसिस क्या था, दैट वाज ऑन द बेस ऑफ पंचशील. ओके, दैट वाज दैट 5 प्रिंसिपल्स. फाइन. और 5 प्रिंसिपल कौन कौन से? These were those 5 principles: mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression and mutual non-interference in each other's internal matters. Okay, equality and peaceful mutual benefits and peaceful coexistence. So ये थे वो 5 basically principle पंचशील. फाइन. अच्छा देखो, इनमें से जो एग्रीमेंट है, दिस फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, कि हम एक दूसरे के जो टेरिटोरियल यूनिटी है उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और उसके सॉवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे. फाइन. दैट इज उस कंट्री के सुप्रीमेसी को हम रिस्पेक्ट करेंगे. ऑन दिस क्लॉज बेसिस इंडिया ने फिर बाद में एग्रीमेंट में ये एक्सेप्ट किया था दैट चाइना का जो क्लेम है ओवर द तिब्बत, इंडिया accepted that. Okay, initially China go against the India, but yes, of this agreement, on the basis of this clause, India actually accepted the China's claim over Tibet. I hope this one cleared all of you. Now, अब इंडिया ने एक्सेप्ट तो कर लिया था because on that clause basis in the Panchshil, okay, that you have mentioned at that again, through one of its clauses about respecting each other's territorial integrity and sovereignty, इंडिया कंसीडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत. फाइन. अच्छा देखो, अब 1956 में क्या हुआ, देखो ईयर वाइज इवेंट्स कैसे होते जा रहे हैं. फाइन. 1950 में चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल किया. 1954 इंडिया साइन दिस एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ओवर द तिब्बतन रीजन विथ चाइना, तो पंचशील एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया था. एंड 1956 में क्या हुआ, 1956 में बेसिकली तो तिब्बत के रीजन की जो वहाँ के स्पिरिचुअल जो लीडर है दलाई लामा, स्पिरिचुअल बेसिक एंड पोलिटिकल लीडर दलाई लामा. देखो दलाई लामा बेसिक सपोज जो उस पहले 13 दलाई लामा थे, देन 14th, तो उस टाइम पे जो 14th दलाई लामा जो थे, ही एक्चुअली केम टू इंडिया अलॉन्ग विद चाइनीज प्रीमियर जू एनलाई. ओके, वो इंडिया को विजिट किया था एंड दलाई लामा इन्फॉर्म जवाहरलाल नेहरू दैट द सिचुएशन ऑफ Tibetan people in that location under the control of China is not good. कहीं ना कहीं उनका कल्चर का यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एंड ही सेड दैट द सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड. ओके, and what happened, Jawaharlal Nehru he was not happy listening to this one, and even China actually assured India that चाइना जो है वो तिब्बतन रीजन को एक ऑटोनोमस रीजन प्रोवाइड करेगा. बेसिकली जिस तरीके से बाकी प्रोविंस वगैरह को एक ऑटोनॉमी है, तो इस तरीके से यहाँ पर तिब्बतन रीजन में भी एक ऑटोनॉमी मिलेगा उन्हें, उनके पास भी पावर मिलेगा अपने रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए. फाइन. चाइना अश्योर्ड दैट. एंड 1958 में क्या हुआ, 1958 में तिब्बतन जो लोग जो थे दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट द चाइनीज ऑक्यूपेशन. बेसिकली जो तिब्बतन लोकेशन है, लेट मी शो अगेन द मैप. देखो यहाँ पर इस तिब्बतन लोकेशन में यहाँ पर बेसिकली चाइनीज़ की सेटलमेंट स्टार्ट हो गया. ओके, तो चाइना के लोग अगर यहाँ पर सेटलमेंट होना अगर स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट विल इरोड द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द तिब्बतन पीपल.
फाइन. सो दे वर नॉट लाइकिंग ऑल दोज थिंग्स, यू नो, दैट चाइना का सेटलमेंट्स वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रहे हैं, राइट. तो वहाँ के तिब्बती लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था. दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द चाइनीज ग्रुप, एंड ऑफ कोर्स चाइना वाज पावरफुल, तो अपने फोर्स के थ्रू इस सारे मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था. एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, मेनी तिब्बतियन पीपल दे क्रॉस द इंडियन बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके वो इंडिया में आ गए. ओके. उनमें जो वहाँ उस टाइम के दलाई लामा जो थे, 14th दलाई लामा, ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, अराउंड 18, 19, 20 एज ग्रुप के कैटेगरी में उस टाइम पे थे. तो उन्होंने वो भी इंडिया में आ गए थे. एंड देन नाउ दे लॉट ऑफ रेफ्यूजीज आर नाउ देयर इन द धर्मशाला रीजन इन हिमाचल प्रदेश. ओके. काफ़ी इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतियन रेफ्यूजीज जो है वो आपको धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे. फाइन. और हाँ, अभी जो 14th दलाई लामा जो उस टाइम इंडिया में आए थे वो भी वहीं पर है. Fine. Now he is around 84 age. So basically, Dalai Lama, what he took asylum in India. See, asylum का मतलब क्या है? The protection granted by a state to someone who has left their home country as a political refugee. Okay. So basically, Dalai Lama वो अपने home country क्या तिब्बत रीजन को छोड़ के वो हमारे country में आ गए, और हमारे कंट्री ने उनको asylum grant कर दिया. Okay, as a political refugee, और वो इंडिया में है. Fine. Now you can see the picture of दलाई लामा कि उस टाइम पे उनका जो यंग फोटो है, this one you can see here, and this is the recent one. Okay, I hope this one clear to all of you. Now अब चाइना, एज आई मैंशन कि चाइना ने बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया था. एंड दिस इज़ अ धर्मशाला जहाँ पर आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो तिब्बतियन रेफ्यूजीज हैं वो यहाँ पर सेटल्ड है. ओके. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली चाइना ने क्या किया, दिस तिब्बतियन एक रीजन को एक ऑटोनमस रीजन डिक्लेयर कर दिया था. है कोई. ओके. सी, ऑटोनमस रीजन डिक्लेयर कर दिया, बट येस इट इज़ इंटीग्रल नाउ पार्ट ऑफ China. Okay. Now Tibetan जो है they actually oppose the China's claim that Tibet is part of Chinese territory. Fine. और उन्हें ये लगता है कि उनके पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं है, कहीं ना कहीं वो उनके जो कल्चर वगैरह को चाइना सप्रेस कर रही है. सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट एक्चुअली गोज ऑन. ओके. सो दिस इज अबाउट वन प्रॉब्लम. अच्छा. ओके. इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेन थिंग दैट इज टू बी नोटेड, सिंस दलाई लामा केम टू इंडिया, और बहुत सारे और तिब्बतन भी इंडिया में आ गए थे, तो चाइना एक्चुअली ब्लेम्स ऑन इंडिया दैट इंडिया इज एक्चुअली गिविंग प्रोटेक्शन टू ऑल द एंटी चाइनीज एलिमेंट. ओके. सो अब दलाई लामा और जो बाकी तिब्बतन जो इंडिया में आ गए, तो डेफिनेटली अब चाइना के लिए तो वो एंटी होंगे ना, राइट. सो इट इज़ ब्लेमिंग ऑन इंडिया कि दैट इंडिया जो है वो उन सारे एंटी चाइनीज एलिमेंट्स को इंडिया जो है उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और वो इंडिया से एक तरीके से एंटी चाइनीज जो एक्टिविटीज़ है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड हियर. एंड इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, दैट तिब्बत जो था एक बफर जोन की तरह हिस्टोरिकली रहा है. अब उनके साथ बॉर्डर डायरेक्टली शेयर नहीं हो रहा था वैसे, बट नाउ अब तिब्बत चाइना का पार्ट बन चुका था. अब नाउ इट्स अ बॉर्डर सिक्योरिटी concern for India. So this is one thing. Okay. Now let's discuss about the second one, that is this border dispute between India and China. See, border dispute between India and China. First see this map. यहाँ पर ये जो line है ना, this one over here, this McMahon line. Okay. So इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर डिमार्केशन ओवर दिस अरुणाचल प्रदेश रीजन, यहाँ पर जो अभी ये जो बाउंड्री लाइन है, दैट इज, इसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन. ओके. नाउ लेट मी गिव अ लिटिल बिट बैकग्राउंड. बेसिकली 1914 में, ओके, शिमला में एक कन्वेंशन हुआ था, और उस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर, सिंस इट वाज इनिशियली तिब्बत, ओके, तिब्बत रीजन है, अभी तो ऑटोनमस रीजन है, बट अभी तो चाइना के कंट्रोल में, बट एट दैट टाइम एक जब तिब्बतियन रूल यहाँ पर था एट दैट टाइम, और इंडिया में ब्रिटिश इंडिया था, राइट. तो उस टाइम पे एक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे, हेनरी मैकमोहन. ओके. ब्रिटिशर्स बेसिकली उनके साथ एक शिमला कन्वेंशन, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था विद द तिब्बतन रूलर एट दैट टाइम, और वहाँ पर ये डिसाइड हुआ था कि दैट ये जो लाइन जो होगा, दिस विल बी द बाउंड्री लाइन बिटवीन द तिब्बतन रीजन and with India. Okay. So this was decided at that time. Fine. Now after independence, अब इंडिया तो ये मानता है कि जो बाउंड्री उस टाइम पे कॉलोनियल टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया, इंडिया एक्सेप्ट्स दैट. फाइन. बट चाइना अगेंस्ट दैट कॉलोनियल डिसीजन, वो इस बाउंड्री लाइन को जो इंडिया का और चाइना के बीच में है उसको नहीं मानता. दैट इज द पॉइंट. ओके. अब इंडिया और चाइना के बीच में एक बाउंड्री कहाँ पर डिस्प्यूट है, दैट इज ओवर दिस रीजन, दैट इज दिस वन. ओके.
दिस इज अक्षय चंद रीजन जो आज भी प्रेजेंट में भी कन्फ्लिक्ट यहीं पर हो रहा है. ओके, एंड दिस वन. फाइन. ना अगर हम लोकेशन वाइज देखें मैप वाइज, देन यू कैन सी हियर, इसको इस तरीके से मैं डायरेक्शन निकाल रही हूँ. फाइन, लेट मी डू इट अगेन. इस तरीके से देखना. ओके, दिस विल बी नॉर्थ डायरेक्शन, दिस विल बी साउथ, एंड दिस विल बी वेस्ट, दिस विल बी ईस्ट. ओके, सो ये हो गया ईस्टर्न फ्रंट और ये हो गया वेस्टर्न फ्रंट. ओके, सो यहाँ पर हमारी डिस्प्यूट कहाँ पर है? ओवर दिस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर. तो ये हो गया ये वाला जो वेस्टर्न फ्रंट और ये ईस्टर्न. फाइन, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है. ओके, मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता इसको बाउंड्री. चाइना सेज दैट कि मच ऑफ दिस अरुणाचल प्रदेश रीजन, कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी रीजन वो खुद क्लेम करता है कि दैट दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ तिब्बत, सिंस तिब्बत अब चाइना के कंट्रोल में है. और वो ये कहता है कि ये साउथ तिब्बत है, दिस इज पार्ट ऑफ नाउ चाइना. दैट इज वॉट चाइना क्लेम्स. ओके, बट इंडिया कहता है कि दैट दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया. फाइन. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस वन अक्साई चिन रीजन, यहाँ पर भी चाइना ये कहता है कि दैट दिस रीजन इन लद्दाख, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू लद्दाख ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो ये वाला रीजन है अक्साई चिन, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू चाइना. वो इसको भी क्लेम करता है. आई डोंट नो चाइना किस किस को क्लेम करेगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट. एनीवेज, नाउ सी, सो इन दोनों रीजन को चाइना एक्चुअली क्लेम करता है. एंड सी, इफ़ यू टॉक अबाउट इस रीजन में क्या है बाउंड्री वगैरह, इट्स अ नेचुरल बैरियर. यहाँ पर हिमालयस हैं बेसिकली. ओके, सो नेचुरल बैरियर यहाँ पर है. नाउ यहाँ पर ओवर दिस डिस्प्यूट, देखो यहाँ पर ये दूसरा मैप है, कैन सी हियर डिस्प्यूटेड एरिया अक्षय चिन और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश रीजन. फाइन. बिटवीन 1957 और 1959 में क्या हुआ? Chinese actually what they done, they occupied this Aksai Chin area and built a strategic road. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड उन्होंने बिल्ड कर दिया था, विच क्रॉसिंग थ्रू अक्साई चिन रीजन. फाइन. एंड उससे बहुत ज़्यादा इंडिया को गुस्सा आया था, बिकॉज हाउ कैन अ कंट्री मेक अ रोड विच एक्चुअली गोइंग थ्रू फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री. Fine, India claims Aksai Chin region, and then that led to a lot of discussion between both the countries, but all the things failed. And ultimately क्या हुआ? Small disputes between the Indian army soldiers and with the Chinese soldiers started in these disputed area. And finally what happened? 20th October 1962. Okay, China attacked this both the region, यहाँ पर अक्साई चिन region and this over this अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन लाइन के बाद वहाँ पर चाइना ने अटैक फाइनली कर दिया. एंड दैट स्टार्टेड दिस 1962 वॉर. फाइन. एंड व्हाट हैपेंड? इंडिया ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट. कहीं ना कहीं उसने यहाँ पर रीजन अक्साई चिन के पास थोड़ा सा अपना सोल्जर के थ्रू वहाँ पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया. बट येस, ओवर इन दिस रीजन, दिस ओवर दिस अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाया. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द failure on our part. That was basically technologically we were backward, and infrastructure यहाँ पर mountainous region यहाँ पर भी. Okay, and the infrastructure was not that much good, जिससे of course soldiers अगर कहीं पर fight करें तो they need all those they should have that good infrastructure facilities जहाँ पर वो supply proper तरीके से अपने weapons को supply कर सके. But yes, वी फेस दिस प्रॉब्लम सिंस वहाँ पर बहुत ही पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पर इतना कन्फ्लिक्ट करना आई मीन एट दैट प्लेस इट वॉज नॉट फेवरेबल फॉर इंडिया. एंड चाइना वॉज वेरी वेरी वेल इक्विप्ड फॉर दिस वॉर. उसके सारे वेपन्स एवरीथिंग वॉज रेडी. फाइन. एंड व्हाट हैपन स्लोली एंड ग्रेजुअली, चाइना ने स्लोली एंड ग्रेजुअली या अरुणाचल प्रदेश से कंट्रोल करते करते स्टार्टेड कंट्रोल दिस सम ऑफ द प्लेन्स ऑफ असम रीजन. वो असम तक पहुँच गए. ओके, एंड व्हाट इंडिया डन, इंडिया ने फिर मदद मांगी यूएसए से और यूके से फॉर मिलिट्री असिस्टेंस, बिकॉज वी नो दैट वी वर नॉट स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम. तो हमने मदद मांगी थी यूएसए और यूके से, एंड ऑफकोर्स दे रिस्पॉन्डेड इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव मैनर. एंड विथ टाइम क्या हुआ, दैट इज अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था. ओके, 20th अक्टूबर, एंड 21st नवंबर चाइना ने यूनिलैटरली खुद से ही डिक्लेयर कर देते कि हम सीज फायर कर रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं इसको. ओके, वी आर स्टॉपिंग दिस वन. देखो, 2 फेज में हुआ था. पहले एक अटैक हुआ था, उसके बाद 1 महीने बाद फिर से अटैक हुआ था. इस तरीके से हुआ था ये. ओके, तो फाइनली चाइना ने यूनिलैटरली सीज फायर जो है वो डिक्लेयर कर दी थी. सो बाय 21st नवंबर 1962 इट एंडेड. फाइन. अब देखो, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत नोटिस करने वाली बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर उस टाइम पे क्या हो रहा था. सेम दैट टाइम पे 1962 अक्टूबर टाइम
Cuban Missile Crisis took place. Okay, Cuban Missile Crisis that we discussed in that Cold War era chapter, that USA and USSR के बीच में वहाँ पर like a kind of nuclear war जैसा situation हो गया था, that was taking place. So ये दोनों जो powerful countries थे वहाँ पर busy थे, so they were not strongly came for the assistance of India. वो इतना strongly आ नहीं पाए, but yes, USA assured positively to India. Fine, and USSR remained throughout this conflict. It remained neutral. वो किसी एक तरफा नहीं हुआ था, वो न्यूट्रल थे इन बिटवीन. फाइन. अच्छा, अब डिस्कस करने वाली बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट. what were the impacts of this 1962 war? क्या impacts थे इसके, आफ्टरमैथ क्या थे, consequences क्या थे? Very very important. Let's discuss. Now the first thing is that China actually damaged the image of India at home and at an international level. Okay, हमारे इंडिया का जो इमेज है, हमारे इंडिया विद इन इंडिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा वो डैमेज हो गया था, इंटरनेशनल लेवल पे भी डैमेज हो गया था कि हाउ कैन इंडिया फेल लाइक दिस. और विद इन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसाइज़ किया था ऑन ऑल दोज लीडर्स हु वर देयर इन द हाई पोस्ट एट दैट टाइम. एंड येस, इससे एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म भी काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ. अब लोगों को और गुस्सा है कि दैट nationalism feeling emerged strongly, that in future कभी war होता, that we have to respond that strongly. Fine. And जो उस time पे top हमारे army commanders जो थे, they actually many of them were resigned from the post, and they were actually forced to retire from the post. And Nehru prime minister at that time and defense minister at that time, V.K. Menon, that is V.K. Krishna Menon, then both they have to leave the cabinet. अब cabinet उन्होंने छोड़ दिया था. एंड नेहरू फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, और उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा. दैट ही फेल्ड टू लाइक इवैल्यूएट द सिचुएशन प्रॉपरली. वो नहीं समझ पाए कि चाइना की सिर्फ थ्रेट हो सकता है, बिकॉज फ्रॉम स्टार्टिंग स्टिल, एंड ही वॉज टेलिंग दिस वन दैट चाइना से थ्रेट नहीं हो सकता. And even V.K. Menon as well, they both were strongly they were in favor that China कभी threat नहीं कर सकता, उनके साथ war नहीं हो सकता. And they believed कि इंडिया, अगर इंडिया को कोई थ्रेट हो सकता है, दैट विल बी फ्रॉम पाकिस्तान, नॉट फ्रॉम चाइना. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि दैट उनका इवैल्यूएशन सारा जो था वो गलत था. फाइन. एंड फर्स्ट टाइम लोकसभा में नेहरू की जो गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ने फेस करना पड़ा. ओके, एंड आफ्टर दैट इसमें जो उस टाइम पे बाई इलेक्शन जो डिफरेंट पोस्ट के आई मीन पार्लियामेंट के डिफरेंट सीट्स के लिए बाई इलेक्शन जो हुए थे. सी, बाई इलेक्शन यू ऑल नो इट वेरी वेल कि कहीं पर अगर कोई लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिज़ाइन कर दें या फिर उनकी डेथ हो जाए, उनकी फिर वो सीट वेकेंट हो जाए, तो उसके बदले में वहाँ पर बाई इलेक्शंस होते हैं. राइट. सो बाई इलेक्शन जो उस टाइम पे कुछ ऐसे सीट्स के लिए हुए थे पार्लियामेंट के, दैट कांग्रेस वो जो इंपॉर्टेंट सीट जो थी वो वहाँ पर हार गई. ओके, सो दैट समथिंग वेरी वेरी बैड थिंग फॉर द स्ट्रॉन्ग पार्टी एट दैट टाइम. एंड political mood of the country changed, started changing at that period. Okay, अब political situation जो इंडिया में क्या था वो change होना start हो गया, different parties और emerge होने लग गया. अब जो कांग्रेस के ऊपर जो एक एक faith जो था, that started coming down. So these are the few things. There are many things. Let's continue and see. जो इंडिया और चाइना, सी इंडियन कन्फ्लिक्ट, दैट इज चाइना इंडिया कन्फ्लिक्ट. एंड चाइना और सोवियत यूनियन का जो रिफ्ट है, बेसिकली देखो चाइना एंड सोवियत यूनियन के ऑल्दो दे वर कम्युनिस्ट कैटेगरी में थे, बट येस दे एक्चुअली दे डू हैड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. फाइन. और चाइना और सोवियत यूनियन के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट उस टाइम पे कर रहे थे. तो बिकॉज ऑफ दिस बोथ द कन्फ्लिक्ट, इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट और इंडिया चाइना एंड सोवियत जो बैड रिलेशंस उस टाइम पे हो रहे थे, बिकॉज ऑफ that affected the both these things affected the opposition party in India. Okay, opposition party कौन सी? The same ideology based जो है, that was this communist party of India. Fine. अब communist party of India क्या हुआ उसमें 1964 में इस पार्टी के अंदर स्प्लिट हो गया. now split कैसे हुआ? See, जो इस पार्टी के अंदर वो लोग थे who were actually in favor of USSR, they were actually close to Congress party. ठीक है, वो तो उसी पार्टी में रहे, CPI पार्टी में ही रहे वो लोग. फाइन. एंड वो लोग जो CPI पार्टी में थे वो वर एक्चुअली इन फेवर ऑफ प्रो चाइना एंड दे वर अगेंस्ट कांग्रेस. दे लेफ्ट दिस पार्टी एंड दे क्रिएटेड द न्यू पार्टी, दैट वाज दिस वन, CPIM. that is this कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट. फाइन. सो ये दो
जो पार्टी स्प्लिट हो गया एक तरीके से 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, फाइन। और जो बहुत सारे ऐसे लीडर जो थे वो एक्चुअली अंडर दिस CPI M कैटेगरी, मार्क्सिस्ट कैटेगरी, काफ़ी ज़्यादा जो प्रो चाइना की बात करते थे उनको अरेस्ट भी कर लिया था, जेल में डाल दिया था। यू कैन सी द पार्टी सिंबल ओवर हियर, दिस इज CPI M and this one's CPI पार्टी। नाउ एंड और क्या फर्दर चेंजेस हुए थे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वहाँ पर लीडरशिप में काफ़ी चेंजेस हुए थे, जो लीडर्स वहाँ पर टॉप पोस्ट में थे उसमें चेंज हुआ। एंड नाउ द गवर्नमेंट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। अब फोकस हो गया, अब इंडिया को रियलाइज़ हो गया कि दैट अगर इंडिया को अपने बॉर्डर को सिक्योर करना हो तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए बेटर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर डेवलप होना चाहिए, वहाँ के रोड्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से होने चाहिए, वहाँ पर हाईवे अच्छे होने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कभी कन्फ्लिक्ट होगा तो वी शुड बी एबल टू काउंटर दैट वेरी वेल। ओके, हमारे सोल्जर्स के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, फाइन। एंड नागालैंड को स्टेट वुड ग्रांट किया सो दैट काफ़ी डिस्टर्ब एरिया था, सो दैट दे कैन एडमिनिस्टर दैट प्लेस वेरी वेल। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मणिपुर एंड त्रिपुरा और देवर यूटीज एंड बट येस देवर यूटीज लाइक दिल्ली कि वहाँ पर वो अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वहाँ पर मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होंगे, वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा, तो उस तरीके से थे। बट येस लेटर ऑन दे वर ऑल्सो मेड एज स्टेट। ओके, सो आज के टाइम में मणिपुर और त्रिपुरा स्टेट्स हैं, फाइन। So these were the few changes which were actually few impacts of this 1962 war. One very important impact which is not mentioned in book, just want to mention here, that the non-alignment movement, non-alignment policy, non-alignment foreign policy of India came under question mark. You remember 1955 के बैंडोंग कॉन्फ्रेंस के बाद दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्टेड यूगोस्लेविया, ओके, और इसका फर्स्ट समिट हुआ था 1961 एट बेलग्रेड, फाइन। 1961 में हुआ था, फाइन। एंड 1962 में इंडिया और चाइना के साथ वॉर हुआ, ओके, एंड इन दैट वॉर इंडिया एक्चुअली approached USA for the support for military assistance. So of course we were living at that time Cold War period. How can India approach USA if we are following non-alignment, right? So that was something एक तरीके से non-alignment के question mark के अंदर आ गया था। Okay, so this is all about in this particular part. I hope this one clear to all of you. In next part we will discuss about India Pakistan. Thank you for watching this video.